बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज अपना ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो है आर्किटेक्चर्स के बारे में, सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ के। हमने इसके जनरेशन्स पढ़े थे कुछ वीक्स पहले। तो आज जो है हम इनके आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इनके वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दीज आर्किटेक्चर ऑल वर्क आउट, राइट। इसमें इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, इनके ब्लॉक्स क्या क्या हैं, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम just a second. सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन के आर्किटेक्चर के बारे में, जो आपके 2G नेटवर्क की हम बात करते हैं उसका आर्किटेक्चर है। तो इसके आर्किटेक्चर में अगर आप देखें, बिल्कुल सामने आपको नज़र आ रहा होगा इसके सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या क्या मेन ब्लॉक्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हमारे पास मोबाइल स्टेशन है, फिर उसके बाद बेस स्टेशन, सब सिस्टम, एंड देन वी हैव नेटवर्क सब सिस्टम. So we will learn one by one about all these three blocks, right? So, the first one is mobile station. Mobile station, its name says that it is all about the cell phone, the mobile phone that you people have in your hands, right? It is the equipment, that it is the device that you use it for the purpose of communication. But the mobile station is not just the mobile device, the hardware that you have, but it is also the SIM that you use, that you install in your cell phone, that is known as subscriber identity module. The full form of SIM is actually subscriber identity module. So both these things, that is mobile station, mobile equipment, the device, the hardware that you use, and the SIM that you install inside it, combine to make the mobile station of the global system for mobile communication, that is second generation of cellular technology, right? You can see it is written over here again that mobile station is a combination of mobile equipment and the subscriber identity module, right? So yes, it is produced when by different manufacturer, by different companies, by different brands, right? Your mobile equipment have a unalterable, you can say, number, right? एक ऐसा नंबर है, यूनिक फिक्स नंबर आपके सेल फोन को दिया जाता है, जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं, राइट? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, विच कैन नॉट बी ऑल्टर, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज़ फिक्स्ड ग्लोबली. उसका जो नंबर है उसे फिक्स्ड किया जाता है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता, दैट इज़ जस्ट फॉर दैट मोबाइल ओनली, राइट? सो जो आपके वो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन है, इसमें ये पावर लेवल बताया 0.8 वॉट टू 20 वॉट, राइट? सिमिलरली आपका जो सिम है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, राइट, इसका भी एक यूनिक नंबर दिया जाता है, जिसको हम IMSI कहते हैं, दैट द फुल फॉर्म ऑफ दिस इज इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, राइट? जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हैं उसका भी एक आपने देखा होगा कभी, आपको वो मैसेजेस आते हैं कि आप अपना ये जो है तस्दीक करवा रहे हैं, राइट? IMSI नंबर. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. आपके सिम का एक जो है, ये ऐसा नहीं है कि ये आपके सेल फोन का नंबर है, दिस इज़ नॉट द नंबर ऑफ योर सेल फोन, राइट? ये जस्ट आपके ये जो है आइडेंटिटी के लिए आपके सिम के, सो इट इज़ यूज, right? हाँ, SIM भाई, what is the need of using a SIM when there is a when there is a device you are using, you have a hardware you are using, because you see without a SIM, your cell phone is just a hardware, right? The main functionality of communication is all done through the SIM. So here it is written that allows user to send and receive calls and receive other subscribed services. Yes, if you are using a SIM, then only you can have all the services that are required, right? That are required by your, the provider.
Then you have a base station subsystem. The second block of the global system for mobile communication is the base station subsystem. Base station subsystem is actually the combination of the first entity in base station subsystem is your base transceiver station. If you people remember, we have learned in the topic cellular system, we have learned about the cell, right? We said that there is something that provide us the coverage in the cell, and it is placed somewhere in the cell, either in the center or the periphery, right? We just took the name as base station. We didn't say base base transceiver station, right? So actually it is also known as base transceiver station. The reason it is known as base transceiver station is that it has an antenna that is for both transmission and reception. The word transceiver actually means that, right? If it is written that consists of transceiver unit, that means it transmit and it receive also at the same time, right? So uh, after that you have a base station controller. After the BTS in the base station subsystem, you have a base station controller. Actually, under a base station controller, there are many BTS. There are many base stations. Okay, we have base station in the cells, and these base station are controlled by the base station controller, right? So the purpose of base transceiver station is not just the transceiver part, but it also encodes, encrypt, multiplex, and modulate. You have already learned about these terms in the previous classes. The encrypts or encryption means that your data is being transformed in a form that it can only be understand by the receiver, right? It is given some keys that can only be retrieved by the sender, right? So these are the functionalities of the base transceiver station. The second is the base station controller. It's not again the first part, it's the second part actually. There's being a mistake, I've written again and again one. So it's the second part of the base station subsystem. The base station subsystem, sorry, the base station controller, which is the second part of the base station subsystem. uh, what does it do? It is that it controls the BTS, uh, the lower part of that base station subsystem, which is BTS. It is controlled by base station controller, and it controls the handover. We have learned also about this, the handover. What is handover? When we are moving from one BTS to another BTS, so this handover is controlled by the base station controller, right? And the frequencies and the time slots that we have, if you people again, making you remember all these things which we have learned. I've not explained in these slides again because we have already studied these. We have studied about the multiple access techniques, right? FDMA, TDMA. So these were used in your mobile global system for mobile communication. The frequency division, multiple access, and time division, multiple access. So these frequencies and time slots were assigned by by the MS. These are given to that base station transceiver through these controller. The next part, G Samid. Yes. Can you please review your lecture in Urdu? Because some of our mates face Okay, difficulty okay, fine. when you are speaking Because English. Samid, the problem is when I give the lecture in English, it is a bit easier for me because I'm more fluent in English than Urdu. So no problem. अच्छा, हम उर्दू में दे देते हैं आपका ये लेक्चर. सो इसको फिर स्टार्ट करें तो या यहीं फ्लैट से भी इंग्लिश कंटिन्यू में कर है, फिर वो बच्चों को समझ यस नहीं यस आता ना फिर यहाँ बात। बिल्कुल मेन पर्पस तो वही है. आप मुझे बताएं हम इसको यहीं से कंटिन्यू करें या फिर हम जी दोबारा जी, आप यहीं से कंटिन्यू करो। यहीं से कंटिन्यू करें. जी जी। तो हम इसमें देखें, हमने कुछ ब्लॉक डायग्राम्स की बात की है.
जो बेस स्टेशन, सबसे पहले तो हमने मोबाइल स्टेशन की बात की थी। मोबाइल स्टेशन आपका जो सेल फ़ोन है वो है, और उसमें के साथ जो आपका सिम है जो आपके सेल फ़ोन में इंस्टॉल होता है, वो मिला के आपका मोबाइल स्टेशन बनाता है, राइट। सो नेक्स्ट जो आपका है वो है बेस स्टेशन सब सिस्टम। बेस स्टेशन सब सिस्टम में आपकी बेस ट्रांसीवर स्टेशन आता है, आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर आता है। बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो हम शुरू से बात करते हुए आ रहे थे आपके सेल्यूलर सिस्टम में, कि देयर इज़ अ सेल, ठीक है, हम सेल की बात कर रहे थे। यू ऑल पीपल नो व्हाट अ सेल इज़, व्हाट इज़ सेल्यूलर सिस्टम, एंड what a base station is, which is installed in एक सेल में जो है इंस्टॉल किया जाता है उसे, एक सेल के विद इन। हमने कहा था कि उसके लोकेशंस होते हैं, हम सेंट्रल में कर सकते हैं, हम पेरिफेरी में कर सकते हैं, तो दैट वाज द बेस स्टेशन। सो उस बेस स्टेशन को हम बेस ट्रांसीवर स्टेशन भी कहते हैं, राइट। सो बेस ट्रांसीवर स्टेशन जो है आपके सेल को कवरेज पूरा उसको कवर करता है, राइट। उस एरिया को जिसको हम सेल कहते हैं उसको बेस ट्रांसीवर स्टेशन कवर करता है, और बेस ट्रांसीवर स्टेशन को कंट्रोल करने वाला है बेस स्टेशन कंट्रोलर, जो कि मल्टीपल बीटीएस को विद इन अ एरिया जो है वो उसे कंट्रोल करता है, उसे कवर करता है, राइट। यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसीवर यूनिट। द रीज़न इट इज़ रिटन हियर ट्रांसीवर यूनिट, ट्रांसीवर इज बोर्ड फॉर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन, ये इनकोड इनक्रिप्ट मल्टीपल्स और मॉड्यूलेट की हमने ऑलरेडी बात की हुई है, इसके बारे में हमने पढ़ा है इन चीज़ों के बारे में। तो ये सारे जो हैं इसके बीटीएस के फंक्शनैलिटीज़ हैं। बेस स्टेशन कंट्रोलर जो है वो क्या करता है, यस, कंट्रोल करता है आपके बीटीएस जितने भी हैं एरिया में, उनके दरमियान जो हैंडओवर हो रहा होता है। हमने हैंडओवर के बारे में भी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि हैंडओवर क्या होता है। जब हम एक सेल को छोड़ के दूसरे, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम मूव कर रहे होते हैं, मोबिलिटी में है, एक सेल से दूसरे सेल में हम जा रहे होते हैं, तो उस टाइम को हम हैंड ऑफ या हैंड ओवर कहते हैं। तो इस हैंड ओवर को कंट्रोल करने वाला आपका बेस स्टेशन कंट्रोलर है, क्योंकि वो अपनी फ्रिक्वेंसीज़ को स्विच कर रहा होता है। तो ये सारा काम जो है बीटीएस बेस स्टेशन कंट्रोलर कंट्रोल करता है, राइट। हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन, मल्टीप्लेक्सिंग, टाइम डिवीजन, ये मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स के बारे में पढ़े हैं, इसीलिए यहाँ पे दोबारा हमने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। सो इन सब चीज़ों को, ये जो फ्रिक्वेंसी और टाइम स्लॉट्स को जो है मैनेज करना, जो एमएससी की तरफ से आती हैं, वो भी बेस स्टेशन कंट्रोलर ही करता है, राइट। नेक्स्ट आपका जो ब्लॉक है वो है नेटवर्क जो है आपका सब सिस्टम है। तो नेटवर्क सब सिस्टम में आपके पास ये मोबाइल स्विचिंग सेंटर आता है। जो एमएससी की बात बार बार कर रहे थे, जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी सेल्यूलर सिस्टम, तो हमने थोड़ा बहुत एमएससी के बारे में देख लिया था कि एमएससी जैसे आपको एक बता दिया होगा, इतना डीप हमने नहीं पढ़ा इसके बारे में। सो इसमें आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर आता है, उसके बाद आपके रजिस्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका HLR है, VLR है, और इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है, होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटिंग लोकेशन रजिस्टर है, और ऑथेंटिकेशन सेंटर है। इसके बारे में हम एक एक करके अभी देखेंगे। जो आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर है वो एक्चुअली हम कह सकते हैं कि आपके पूरे नेटवर्क का हार्ट है, राइट। जो पूरा आपका ये जो 2G का नेटवर्क है उसमें मोबाइल स्विचिंग सेंटर इज़ द मेन थिंग, राइट। सो मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है आप कह सकते हैं इसके थ्रू कॉल राउट होता है आपका, राइट। हाउ इट डज़ इट थ्रू इट्स रजिस्टर। किस तरह आपके रजिस्टर्स के, इसके रजिस्टर्स जो हैं हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, होम लोकेशन रजिस्टर है, विजिटिंग लोकेशन रजिस्टर है, आपका इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर है। तो इसके थ्रू जो आपका जो मोबाइल यूज़र है उसको राउट किया जाता है, उसकी कॉल को राउट किया जाता है। तो ये सारे काम आपके मोबाइल स्विचिंग सेंटर कर रहा होता है, राइट। बिलिंग इंफॉर्मेशन, ये मोबिलिटी मैनेजमेंट, अभी जो मैंने ये सारी बातें की है, राउटिंग वगैरह, ये मोबिलिटी मैनेजमेंट में भी आता है, ठीक है। लोकेशन जो है यूज़र का बार बार अगर वो रोमिंग में है, वो मूव कर रहा है, तो लोकेशन उसकी अपडेट हो रही है, दैट इज़ डन बाय मोबाइल स्विचिंग सेंटर। हैंड ऑफ जो है, अगर
अब हैंड ऑफ जो है, पहले हमने कहा कि हैंड ऑफ बीटीएस के दरमियान अगर हो रहा है तो उनको बीएससी कंट्रोल कर रहा है। एक बीएससी के अंडर जितने भी बीटीएस हैं, राइट, उनको कंट्रोल कर रहा है एक बीएससी। तो उन बीटीएस के दरमियान अगर हैंड ऑफ हो रहा है तो बेस स्टेशन कंट्रोलर कर रहा होता है। लेकिन अगर बीटीएस जो है वो उन बीटीएस के दरमियान अगर हैंड ऑफ हो रहा है जो कि डिफरेंट बीएससी के अंडर हैं, तो फिर उनको मोबाइल स्विचिंग सेंटर देख रहा होगा, राइट। पहले तो हमने कहा कि बीएससी कर रहा होगा, क्योंकि बीएससी जो है वो बहुत सारे बीटीएस को कंट्रोल कर रहा होता है। लेकिन अगर उसके भी एरिया से बाहर जा रहे हैं, विद इन अ बीएससी नहीं है, किसी और बीएससी के अंडर जो बीटीएस हैं, अब बीएससी टू बीएससी आप कह सकते हैं हैंड ओवर हो रहा है, मीन्स उनमें जो बीटीएस हैं, बीएस डिफरेंट बीएससी के अंडर, तो उनमें अगर हैंड ऑफ हो रहा है तो वो मोबाइल स्विचिंग सेंटर देख रहा होगा, राइट। सो सबसे पहले आपका इसमें होम लोकेशन रजिस्टर, ये आपके जो नेटवर्क सब सिस्टम जो है उसके पार्ट्स हैं। जैसे कि आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर था, उसी तरह ये होम लोकेशन रजिस्टर है। अब होम लोकेशन रजिस्टर में जो है आपके ये जो है होम लोकेशन रजिस्टर में यूज़र का जो एड्रेस है, जहाँ से वो बिलोंग करता है, जहाँ से उसने अपना करवाया हुआ है ये सर्विस, राइट। सो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होती है, उसकी जो करंट लोकेशन है वो उसमें होती है, राइट। और हमने आईएमएसआई नंबर की बात की थी, जो आपके सिम की जो है यूनिक नंबर है वो उसमें स्टोर होता है। MSISDN एक्चुअली आपका फ़ोन नंबर है। MSISDN इज़ योर फ़ोन नंबर, राइट। इसका फुल फॉर्म है मोबाइल स्टेशन इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायरेक्टरी नंबर, राइट। सो ये आपका सेल फोन जो है उसका नंबर है। इसके थ्रू जो है अगर किसी भी ये जो मोबाइल लोकेशन रजिस्टर है और VLR है या IR EIR है, इन सब के थ्रू जो है अगर किसी भी यूज़र को रिस्ट्रिक्ट करना है और उसकी अगर रोमिंग हो रही है, मतलब ये सारी जो मोबिलिटी है वो इन सारे रजिस्टर्स के थ्रू हो रहा है, राइट। और फिर आपका आता है विजिटर लोकेशन रजिस्टर। विजिटर लोकेशन रजिस्टर जो है, अगर आप रोमिंग में हैं, आप मूव कर रहे हैं, मोबिलिटी हो रही है, मूवमेंट हो रही है, सो इस वक्त क्या होगा कि आपका जो लोकेशन है वो चेंज हो रहा होगा। सो विज़िटर लोकेशन में आप अगर नहीं एक जगह विज़िट करते हैं जो जहाँ के आप मीन्स जहाँ पे आप नहीं थे ऑलरेडी, तो वहाँ पे उस विज़िटर लोकेशन रजिस्टर में आपका नंबर आ जाएगा, आपका IMSI आ जाएगा कि ये यूज़र यहाँ एंटर हुआ है, राइट। सो इस तरह से, ताकि उसे उस जगह की भी जो BTS है, जो BSC है और ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ से उसको ये सर्विसेज मिलें। ऐसा ना हो कि वो उसको सिर्फ अपने होम लोकेशन में ही जो है सर्विसेज प्रोवाइड हों, बल्कि वो जहाँ जहाँ मूव कर रहा है वहाँ पे वो पहचाना जाए और उसको वो सारी सर्विसेज मिल जाएँ, राइट। तो यहाँ पे टेम्प्रेरी तौर पर उसकी एड्रेसेस मौजूद होती हैं। आपके मोबाइल जो स्टेशन है, मीन्स आपका जो सेल फ़ोन है उसके साथ जो सिम है, अलॉन्ग विद द सिम, सो उसको ट्रैक किया जाए और उसको उसके अकॉर्डिंगली उसको सर्विसेज दी जाएँ, जो इन सर्विसेज का उन्होंने जो है कहा था कि रिक्वायर्ड होंगे, राइट। सो उसके बाद आपके ये ऑथेंटिकेशन सेंटर की बात की है। ऑथेंटिकेशन सेंटर एक्चुअली ऑथेंटिकेट करता है उस नंबर को, इस यूज़र को, कि वो ऑथेंटिकेटेड है। मीन्स अगर जैसे आपका कोई सेल फ़ोन आपका मिसप्लेस हो जाता है, तो आप किसी एक कोड डायल करते हैं या कुछ इस तरह से एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू आपको अवेयर करना होता है कि माय फ़ोन इज़ बीन स्टोलन या आपका सिम खो गया है। सो उसके लिए जो आपका फिर नंबर है वो ब्लैक लिस्ट में चला जाता है ऑथेंटिकेशन सेंटर में। तो फिर उससे कोई भी कॉल, अगर कोई कॉल प्लेस करना चाहता है, कुछ करना चाहते तो वो नहीं होता, बिकॉज ऑथेंटिकेशन सेंटर उसे अलाउ नहीं करता, राइट। सो
ये जो है आपके इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर के थ्रू होता है। इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर आपका IMEI नंबर जो है स्टोर कर रहा होता है आपके सेल फ़ोन का, ठीक है। तो वही बात अभी जो है, अगर कोई अनऑथराइज्ड फ़ोन है या ऐसा कुछ है, तो फिर वो उसे ऑथेंटिकेट नहीं करने देता ऑथेंटिकेशन सेंटर के थ्रू, राइट। सो दिस इज़ वाई EIR इज़ यूज्ड। इसमें भी जो है ना, ऑथेंटिकेशन सेंटर और EIR का मिलके काम है, जिसमें लिस्ट होते हैं, जैसे ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट और ग्रे लिस्ट कहते हैं। ब्लैक लिस्ट में जो है, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ स्लाइड में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। ब्लैक लिस्ट में वो फ़ोन्स होते हैं जो आप कह सकते हैं कि ऑथराइज नहीं है या स्टोलन है, या उनमें यस ये सारी चीज़ें। और वाइट लिस्ट में है जो बिल्कुल ही मतलब उनके साथ कोई ऐसा फ्रॉडी जो है सीन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कंडीशन नहीं है। दे कैन बी यूज्ड, वो वाइट लिस्ट में होते हैं। ग्रे लिस्ट में वो हैं जिनमें कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो दे आर नॉट गुड टू यूज़, राइट। सो वो सारी उसमें ग्रे लिस्ट में आपके आ जाते हैं। सो ये एक पार्ट है जो आपका है ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सेंटर। ये एक्चुअली जो है आप कह सकते हैं ये आपका आउट ऑफ द ये आर्किटेक्चर आप पार्ट भी कह सकते हैं, लेकिन इट कैन बी सेड एज अ पार्ट ऑफ द दिस ऑपरेशनल एंड ये जो आपका पूरा आर्किटेक्चर है 2G का। बिकॉज इसमें एक इंजीनियर को एक मींस ट्रबल शूट और डायग्नोस करने का एक सपोर्ट मिल जाता है पूरे जो आर्किटेक्चर है उसको, राइट। और ओवरऑल जितना भी उसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं उनकी वर्किंग को देखना, ये सारा इट मींस ये मॉनिटर कर रहा होता है, और पूरे नेटवर्क को कंट्रोल और मॉनिटर का काम जो है ये आपका ऑपरेशनल एंड मेंटेनेंस सेंटर कर रहा होता है, ठीक है। कोई भी फॉल्ट है या ऐसा कुछ है, मींस अगेन वही बात है कि पूरे नेटवर्क को वो सुपरवाइज कर रहा है, उसको मैनेज कर रहा है, राइट। ओवरऑल एक होता है ना कि बर्ड आई व्यू आप कहते हैं उस नेटवर्क पे, तो दैट इज़ ऑपरेशनल और मेंटेनेंस सेंटर ये काम कर रहा होता है। सो ये आपका GSM आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से हमने इसकी बात की थी। ये सिम और मोबाइल इक्विपमेंट आपका मोबाइल स्टेशन बना रहा है, राइट, जिसके बारे में अभी हमने एक्सप्लेन किया था, राइट। ये आप देख रहे हैं कि BTS है जो आपके बेस स्टेशन है, हमने उसमें भी पढ़ा हुआ है, जो सेल्यूलर सिस्टम में बेस स्टेशन या BTS भी कहते हैं उसको। तो ये बेस स्टेशन कंट्रोलर है जो बहुत सारे BTS को कंट्रोल कर रहा होता है। ये BSC आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये MSC के थ्रू कनेक्टेड है, दैट इज़ वाई हमने कहा कि इसके हैंड ओवर जो है MSC देख रहा होता है। फिर आपका नेटवर्क सब सिस्टम आ जाता है, उसमें MSC है, उसके साथ HLR BLR EIR ऑथेंटिकेशन सेंटर है, ये सब मिला के MSC को काम करके दे रहे होते हैं। और MSC जो है एक्सटर्नल नेटवर्क से भी डील कर रहा होता है। एक्सटर्नल नेटवर्क मीन्स आपके जो PSTN है, दूसरे जो नेटवर्क्स हैं ISDN, इन सब के साथ जो है MSC जो है वो कम्युनिकेट करवा रहा होता है, राइट। सो ये आपका एक डायग्राम है जो GSM सिस्टम आर्किटेक्चर के बारे में है। दिस इज़ ऑल अबाउट द 2G आर्किटेक्चर। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है इसी के बारे में हमने पढ़ा है। तो आपका टाइम एंड होने वाला है, हम अगेन ज्वाइन करते हैं। अभी तक अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। No questions?